everyone, Namaste. This is me Anjali Kochar. Welcome back to my channel Took Wings Blog by Jano Anjali Kochar. तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट था वो था डॉक्टर नीरज संदूजा के साथ. ही इज एन आई स्पेशलिस्ट एंड जो हमने आज कॉन्वर्जेशन करी है वो रही है डायबिटीज और हमारे आई हेल्थ से रिलेटेड. आई नो डायबिटीज इज can impact a lot of other aspects of our body, but eye health is something that प्रोबेबली मुझे भी नहीं पता था कि डायबिटीज की वजह से हमारी आईज भी इम्पैक्ट हो सकती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड डायबिटीज रेटिनोपैथी एंड उसकी वजह से हमें कैटरैक्ट हो सकता है, उसकी वजह से हमें ग्लोकोमा हो सकता है, काला मोतियां जिसे कहते हैं, राइट. तो ये अलग अलग चीजें हमारी आईज में हो सकती है एंड कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स भी नहीं होंगे एंड पता लगेगा कि एक दिन हमें इस टाइप की डिजीज हो गई है और अगले दिन हमारी विजन चली गई, राइट. मैं डरा नहीं रही हूँ. इस कॉन्वर्जेशन में हमने ऐसी सारी चीजों के बारे में डिकोड करने की ट्राई करी है विद डॉक्टर नीरज की क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, क्या प्रिवेंशन होता है, क्या क्योर होता है एंड अमेजिंग ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं अगर डायबिटीज और आई हेल्थ की अगर हम बात करें इस चीज के रिगार्डिंग. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस कॉन्वर्जेशन वॉज वेरी इंसाइटफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि डायबिटीज और आई हेल्थ का भी रिलेशन है, for me to understand कि I should be able to test for myself, for my parents, for my relatives out there कि अगर कुछ आई में प्रॉब्लम है तो could be डायबिटीज, और अगर डायबिटीज है और आई में भी प्रॉब्लम है तो could be some relation जिसका प्रिवेंशन किया जा सकता है और जिसका क्योर भी है, राइट. तो बहुत होपफुल सी कॉन्वर्जेशन है, मैं कोई डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, बट अगेन इट वाज अ वेरी होपफुल कॉन्वर्जेशन, वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन. एंड आई थिंक डॉक्टर नीरज के साथ मेरा बात करने का समय इतना पॉजिटिव रहा है कि यू वुड ऑल्सो गेट दैट वाइब, राइट. एंड अगर आपको डॉक्टर नीरज से डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू देयर सोशल हैंडल्स एंड उनके क्लिनिक का एड्रेस एंड सारी डिटेल्स जहाँ से आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं वो हमने डाल दी हैं. एंड आई वुड लीव इट here and just go watch the podcast, enjoy the conversation, understand from the conversation, and I would say share as much as you can because this is important, guys. This is important for everyone to listen and watch. Thank you so much. Hi, Dr. Neeraj. Welcome to Kahaniya by Tukwings blog. How are you? I'm good. Thank you so much for your invitation. Great. So, as I was telling you just now, that today we are going to ask you a lot of questions about diabetes and eye health of people. You know, uh, I know that diabetes is related to a lot of other aspects of our body as well. So, I'll tell you a story later on, right? But today we'll stick to the eye health of people and we'll discuss about what are the most frequently asked question of people, and if you are the expert and if you could answer those for us. But first of all, at Kahaniya, we have a tradition that we start the podcast with one story, one kahani of yours that you would like to share with all the people out there. See, as far as stories are concerned, there are so many stories from the patient side itself because we tend to interact with so many patients who are fighting with their vision problem. Hmm. So this is what gives you a lot of insight into life also. Hmm. Okay, so I'll be sharing a story of a patient from Iraq. He Hmm. came to me, I think, around 2 months back, Hmm. and he had a electrical cable coming onto his face and burning his face and eyes everywhere around 10 years back. Okay. That happened in Iraq. Hmm. So after that episode, he had a lot of burns over the face, Hmm. and one eye was totally damaged. Other eye he could see only for 24 hours, and after that eye was shut. There was no vision for 10 years. Okay. So he underwent a lot of plastic surgeries to improve the facial appearance. And he Hmm. came to me 2 months back Hmm. telling me that he's not able to see for the last 10 years. Hmm. So I checked him. One eye was totally gone because of the electrical shock. It was kind of melted. Other Hmm. eye, there was a corneal scar. Cornea, the front portion of the cornea Hmm. was damaged, and there was total cataract. Hmm. Cataract, white, सफेद मोतिया bin. Hmm. And retina was not visible. So I did the ultrasound to make sure the retina is in place. Then I took that patient for cataract surgery.
Cataract surgery was quite tricky because the cornea was opaque. It was so difficult to do the surgery. But luckily, we could do the surgery successfully and implanted intraocular lens into the eye. And you will not believe the next day patient was seeing, and he could see almost 80% of his total capacity. So that was very heartening. So Right. this, as a doctor, gives so much of satisfaction, like you are able to help people seeing the world. And Absolutely. especially when the patient is blind with both eyes, it gives you so much of relief and satisfaction for the kind of work you are doing. Right, absolutely. So this brings me to a story I remember from my college days. There was this activity in our college where this professor of ours told us to have a blindfold on our eyes, and then he left a class full of 40, 50 people just out there in the room with our blindfolds on, and he told us that just feel that you can't see. I mean, just imagine that this is your life and you can't see, and uh, you can't just, I mean, there are chairs out there, there are obstacles out there, there are people out there, and feeling that feeling was like unimaginable. And yeah, you're doing such a good thing. I mean, hats off to all the doctors who are being able to, provide eyes to who need it, people who need it. Right. Because eye is one of the most important Right. senses what God has Right. given to us. And if you're not able to see the color of life, you will Hmm. not be able to appreciate the beauty around Right. you, nature around you, and Hmm. so many things you miss in our life. So having good vision is very important. And I think Right. you have raised this subject of diabetes. Hmm. So that is what we are going to discuss about, Right. how No, diabetes affects your eyes. absolutely. Right, right. So, yeah, when we talk about diabetes, it is not just eyes, but it is whole lot of our body that gets affected when we have this, brutal disease called diabetes, right? So, I have a neighbor. She is pretty old, and she had an infection in her foot, and she didn't realize that it's because of diabetes or it's because of her shooting blood sugar or what. But that infection got so severe that they had to amputate her entire leg, and it gives me like it gave me like literally shocking. It was shocking for all of us to watch her like that, right? So yeah, when we talk about diabetes, it is, as I said, it is related to a whole lot of our body, but specifically if we talk about diabetes and eye health today. So would you be able, would you help us understand how basically it is related to eye health of people? See, diabetes, as you told, like one of your neighbors had to go through amputation because diabetes, what it does, it's a Hmm. chronic disease. Hmm. When the blood sugars are high, Hmm. so your blood vessels, they start getting clogged, Right. means the blood circulation stops. When Hmm. the blood circulation stops, it leads to gangrene. Hmm. Gangrene means like the blood supply is not there, you have a black foot, black hand, like this disease. Same thing is happening in the eyes also. Hmm. Eye functions like a camera, where the front portion is cornea, then there is a lens, and back part is the retina. So Hmm. diabetes affects the back part of the eye, the retina, Hmm. where the blood vessels they get blocked. Hmm. They start leaking. Hmm. So when they start leaking, it leads to a problem called diabetic retinopathy. Hmm. And this is how your vision gets affected. And if Hmm. diabetes is not under control or Hmm. your eyes are not checked by your eye specialist, you may Hmm. lose your vision, maybe permanently also. Okay. So this is one part of the diabetes where it is affecting the retina. But Hmm. other things also may happen, like you may develop early cataract. If there is a Hmm. young patient, young onset diabetes, Hmm. if he is not controlling diabetes, it can lead Hmm. to early cataract formation. Hmm. Hmm. एंड इवन द ग्लाकोमा काला मोतिया जिसको बोलते हैं Hmm. उसका इंसिडेंस भी बढ़ जाता है डायबिटिक पेशेंट में Hmm. Hmm. सो और इसके अलावा आंखों में आईलिड्स में आपके बार बार स्टाइल्स बनने लग जाती हैं इन्फेक्शन होने लग जाता है Hmm. ये भी सब चीजें अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर की वजह से होने लगती हैं सो diabetes affects in your eyes in different ways like right starting from your lids repeated infections maybe corneal infections
more Hmm. conjunctivitis, more cataract, and diabetic retinopathy. Right. So, like, for example, किसी को ये eye problems हो रहे हैं. So, is this a sign that they should also get it tested for diabetes as well? Yes, this is a very important point you have raised actually. Hmm. Sometimes I do see patients in my OPD who Hmm. come to me with loss of vision. I ask them whether you are having diabetes or blood pressure because there's some blood spots in the retina, and I'm Hmm. not able to relate because you have not mentioned about any diabetes, hypertension. Then we Hmm. tell them, like, you get your diabetes checked. Sometimes Hmm. they turn out to be diabetic patients. Hmm. They are losing weight. They are getting up in the night repeatedly for passing urine. All Hmm. these symptoms they are neglecting. Hmm. So what happens over period of time, because there is less awareness in rural areas and Hmm. healthcare facilities are not so good, so Hmm. they don't get themselves checked for their health, and it diabetes in a later stage, it starts affecting your body, your heart, kidney, eyes, everywhere. So Hmm. sometimes by looking at eyes, we make the diagnosis the patient is having diabetic retinopathy Hmm. and patient is having diabetes Hmm. or some blood pressure problem also. So Hmm. you can see your eyes health is a window to your body itself. Like you're Hmm. seeing something in the eyes and it is reflecting your some body problem. Hmm. Hmm. Right. Right. But अगर root cause की ही बात करें, so I mean, how to identify that a person may have diabetes? Like you mentioned a sign or symptom that they might wake up late at night for using the washroom. But again, what are the symptoms or signs that people should not ignore when it comes to diabetes first? See, if you are constantly losing your weight, your Hmm. appetite is reducing, you're losing your weight, you have to get up in the evening to pass urine frequently. All these, or you have a lot of like thirst, you have to Hmm. take water again and again. So all these things show that like you are likely to have some problem. So you should visit your physician and get your body checked Hmm. to rule out any problem which is happening in your body, but because everything is unusual, which should not happen to a normal person. Hmm. So in that scenario, you have to visit your physician to check Hmm. it whether anything wrong is happening in your body or not. Hmm. Hmm. So as you talked about diabetic retinopathy, right? So can it be prevented? Is Yes, very much, very much. See, diabetes is a problem. hmm. It's a slow disease where Hmm. it affects your blood vessels of your body. Hmm. Okay. So nothing happens overnight. Hmm. The longer is the duration of diabetes, more likely you are likely to have something wrong in your heart, kidney, or eyes. Okay. Hmm. So very important is if you're a diabetic patient, then you should go for your annual retina examination or fundus examination. Hmm. Because if something is wrong, it can be picked up well in Right. time and it can Right. be rectified also. Hmm. Hmm. So these things are very important. Regular annual checkup is very important. Hmm. 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 Right. Right. So now, how frequently should diabetic patients get their eyes checked? As you mentioned, annually. So annually is the right time. At the time of diagnosis of your diabetes, you Hmm. should go for your eye checkup. Hmm. And second thing, any lady who Hmm. is pregnant and Okay. having diabetes. So Hmm. every trimester, they should have their retina examination done because during pregnancy, physiological changes are there and there can be worsening of diabetes, diabetic retinopathy. So Okay. very important, like you should go. Hmm. It So this, may it also affect the child. no, it will not affect your child, but it can affect your eyes and you may lose your vision also. It will impact your vision. Okay. I mean, it sounds very scary right now, right? So, but I mean, is there a stage of diabetes when a person should be more careful, or at any stage can it impact our eyes? Okay, so it's very important to understand in initial stages of diabetic retinopathy, if you talk about the symptoms, like Hmm. patient, when the patient is going to have some symptoms in his Hmm. or her eyes, Hmm. one thing is there,
initial stages of diabetic retinopathy, when there are few retinal hemorrhages are there, patient will not have any symptoms. Okay. So don't expect, like, if your vision is good, you're not having any problem in the retina. Oh. So that is why we say every year, any diabetic patient, they should have their annual fundus examination or retina examination. So now the question comes, when diabetic retinopathy will affect your vision? It will affect your vision when the disease has progressed. So when the hemorrhages are more and the central point of the retina, the blood vessels, they are leaking and leading to some swelling in the retina. We call it macular edema, macular swelling. Then what happens? Your vision starts getting blurry. You're not able to identify people who are standing at far off distance. You're not able to drive well at night. And sometimes when there is acute bleeding inside the eye, you see a lot of cobweb-like floaters in front of your eyes. Floaters. This is indicative of like you have got some bleeding inside the eye. We call it vitreous hemorrhage. So all these symptoms, if they persist, bleeding increases, you may lose your total vision also. So this is how your diabetic retinopathy affects your vision. Right, right. And you also mentioned that it can also, diabetes can also lead to cataract or glaucoma, right? Cataract, yes, glaucoma, both it can lead to. So very important, if you're having any diabetes related problem, then you should consult your physician and get 1 minute. I just about. Okay. Sorry, the charging. Maybe you can. We can take this question again. Right. So, as you also mentioned about cataract and glaucoma being there when a person is diabetic, right? So, could you throw some light on that aspect as well? See, what happens when your blood sugar is not under control, the lens is there, crystalline lenses inside the eye, which is crystal clear. But in diabetic patients who have poor control, water droplets start coming into the lens and the lens becomes opacified. It becomes white. That is why we call it cataract or safed motiabind. So with poor control of blood sugar, the lens opacification or cataract formation is faster. Even in young age, you can have cataract. And second thing, glaucoma, काला मोतिया जिसको बोलते हैं, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी आंखों में क्या ब्लड वेसल्स लीक करने लग जाती हैं और इवन जो आंख के पानी का रास्ता होता है बाहर जाने का, वो भी बंद होने लग जाता है. इसको ग्लाकोमा बोलते हैं, न्यूवेस्कुलर ग्लाकोमा. तो उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है आंख के अंदर. नॉर्मल आई प्रेशर 10 to 20 होता है, बट डायबिटिक पेशेंट में अगर कंट्रोल अनकंट्रोल्ड शुगर में न्यूवेस्कुलर ग्लाकोमा हो जाता है, आपका प्रेशर 30, 40, 60 हो जाता है एंड योर आई बिकम्स पेनफुल. It becomes very hard, painful. It brings redness, watering, and loss of vision. So all these things are manifestation of diabetes. Right, right. So, let's say, I mean, ये तो अभी तक हमने बात करी कि signs और symptoms क्या है recognize करने के लिए, right? But again, let's say someone is having diabetes and either of the diseases, let's say retinopathy or cataract or glaucoma, right? So, is there still something that can be done? Is it treatable? Or, I mean, just for patients maybe possibly listening to us and who want to understand that or have that hope that Hope is always there, I tell you. And we have to be optimistic whenever we are going for our treatment. Okay. So first and foremost thing is like you need to control your diabetes. First and foremost thing. That is the safest way of prevention of any ongoing disease in your body. Okay. So if any patient develops cataract, the surgery is there, MICS cataract surgery, where we do a cataract surgery and put a new lens inside the eye, and patient gets back almost 100% vision if your retina is not affected. Okay. But if you are having diabetic retinopathy, if it is in the initial stages, few hemorrhages, no swelling, if you control your diabetes, your progression of diabetic retinopathy will slow down. And you will maintain your vision for a good 20, 30, 40 years also. Okay. Oh, that's great. See, looking at only having good metabolic control of diabetes.
Second thing, in case you have developed any problem in your retina in form of diabetic maculopathy, diabetic retinopathy with bleeding inside the eye, then we have treatment for also for that. And with those treatment, we can maintain a very good healthy lifestyle. But first and foremost is having good control so that the eye can be treated well and vision can be saved. राइट राइट सो अब कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हाउ शुड अ डायबिटिक पेशेंट टेक केयर ऑफ their लाइफस्टाइल और कंट्रोल their डायबिटीज इफ यू ठीक है। कुड गाइड अस देखिए, जब हम डायबिटीज के कंट्रोल की बात करते हैं तो जरूरी होता है आपका जो फिजिशियन आपको गाइड कर रहा है, क्या मेडिसिन लेनी है, ओरल मेडिसिन है या इंसुलिन है, जो आपकी बॉडी रिक्वायर मांग रही है उसको पूरा किया जाए। तो एक तो आपने अपने मेडिसिन को पूरा टाइम पे लेना है। दूसरा, जो आपकी डाइट शेड्यूल है उसको पूरा मेंटेन करना है, मीठे को परहेज करना है बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज जितनी हेवायर होगी, ऊपर नीचे जाएगी, उतना ही आंखों में उसका डैमेज बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आपको ब्लड की कमी है, एनीमिया है, तो वो भी कंट्रोल होना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर है, वो भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी सेम इफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने का। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दो चीजें हैं तो आपके एक और एक दो दुश्मन नहीं है, 11 दुश्मन है। इतना ज्यादा वो डैमेज करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अपना, ग्लिसराइड लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर कंट्रोल में रहेंगी तो आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रोग्रेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो अपने डॉक्टर की सुनिए, एक डिसिप्लिन अप्रोच रखिए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। नहीं, I think the point you mentioned about this fluctuation and people not paying attention to that fluctuation, maybe कई बार हो जाता है कि festivals हैं और let's say शादी है, that they don't pay attention to that and that may also lead to, I mean, big disease, right? एक्चुअली ना ये लाइफ टाइम डिजीज है डायबिटीज, तो कई बार आप थक भी जाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक अगर आप एक लार्ज सिनेरियो में देखें, तो लार्जर पिक्चर देखें, तो जरूरी है कि आपको एक हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना है। तो इसमें टाइम पे मेडिसिन ले ली, थोड़ा अपना शुगर का ध्यान रख लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, रादर देन लूजिंग योर आई साइट। Right, right, right. If we come back to retinopathy, are there any advancements in the treatments made till now that, I mean, you would like to tell us? बिल्कुल। सबसे पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। अगर पेशेंट हमारे पास आया है, सबसे पहले तो हम उसको एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं कि विजन कैसी है, आई प्रेशर कैसा है, कैटरैक्ट तो नहीं है, और फंडस चेक करते हैं कि आंखों में डायबिटीज का असर है या नहीं है। अगर आंखों में डायबिटीज का असर है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन होती है फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, जिसमें हम एक इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ पे वेन में, और आंख का फंडस फोटोग्राफी करते हैं, Okay. एंजियोग्राफी बोलते हैं उसको। तो उससे क्या होता है, हमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, कहाँ पे ब्लड वेसल्स लीक कर रही हैं, कहाँ पे हमें लेजर करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, तो उसके बारे में, या जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, पेशेंट की कंडीशन अभी अच्छी है। ठीक है। दूसरा टेस्ट होता है OCT, ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी। इस टेस्ट में क्या होता है, ये हमें ना लेयर बाय लेयर रेटिना का जो सेंट्रल पॉइंट मैक्युला होता है, लेयर बाय लेयर माइक्रोन्स में, 2 to 3 माइक्रोन रेजोल्यूशन में हमें रेटिना की हेल्थ के बारे में बताता है कि रेटिना में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। तो उससे भी हमें पता चलता है हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा रहे हैं। और एक मोडालिटी होती है तीसरी, डाइलेस एंजियोग्राफी, OCT एंजियोग्राफी, क्योंकि जो हम फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में ना इंजेक्शन लगा के करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं कि उसको कई बार ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, कई बार उसको एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो जाती है, डाई सूट नहीं करती, तो बॉडी में इचिंग, इरिटेशन, इवन पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो एक रिस्क की प्रोपोजिशन हो जाता है, होता हजारों में से एक में, बट रिस्क तो रिस्क ही है। तो उसके लिए एक नई मोडालिटी आ गई है, OCT एंजियोग्राफी, जिसमें बिना डाई दिए हम ब्लड सर्कुलेशन को देख पाते हैं। तो उसमें बिना साइड इफेक्ट के, और इवन आपको किडनी प्रॉब्लम भी है तो भी हम OCT एंजियोग्राफी से, एक ये नई मोडालिटी आई है जिससे कि हम एंजियोग्राफी करके ब्लड सर्कुलेशन रेटिना का देख सकते हैं। चौथी मोडालिटी है अल्ट्रासाउंड आंखों का,
आपने तो एब्डोमेन का तो सुना है, बट आंखों का भी हाँ। अल्ट्रासाउंड होता है। अच्छा। हाँ ये जी, मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी जी। आंखों का अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बी स्कैन। उसमें क्या करते हैं, अगर मान लो आंख के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, हम रेटिना को देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम्म। पीछे क्या है, ब्लड के पीछे क्या है, तो हम हम्म। अल्ट्रासाउंड करते हैं देखने के लिए रेटिना डिटैच तो नहीं हो गया है, हम्म। ब्लड की अमाउंट कितनी है, और कब उसको हम्म। सर्जरी के लिए प्लान करना है। तो हम्म। इस तरीके से हम करते हैं, ये हम्म। ट्रीटमेंट अपना फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये बातें तो होगी इन्वेस्टिगेशंस की। अब हम हम्म। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो हम्म। आपका क्वेश्चन था। तो हम्म। ट्रीटमेंट जो होता है 3-4 तरीके से होता है। हम्म। एक तो मैंने सबसे पहले बोला मेटाबॉलिक कंट्रोल, की आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करनी है, तभी हम्म। ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ताकि उसका इफेक्ट अच्छा आए। राइट। ठीक है। हम्म। तो आंखों की तरफ से हमें कई बार अगर लीकेज हो रहती है, ब्लड वेसल्स लीक कर रही होती हैं, तो हम्म। उसके लिए रेटिना लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। जो ब्लीडिंग वाली वेसल्स हैं उसको कोagulate किया जाता है ताकि हम्म। आंखों में ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, हम्म। इसको ग्रीन लेजर से किया जाता है, पैन हम्म। रेटिनल फोटोकोगुलेशन या फोकल लेजर फोटोकोगुलेशन बोलते हैं। हम्म। दूसरा ट्रीटमेंट होता है इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, की आंख के अंदर स्पेशल टाइप के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो हम्म। एंटी वेजेफ इंजेक्शन होते हैं। एंटी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मोटे हम्म। तौर पे इसको एंटी वेजेफ इंजेक्शन बोलते हैं। ये हम्म। इंजेक्शन क्या काम करते हैं, एक तो आपकी रेटिना में जो स्वेलिंग आ गई होती है उसको कम हम्म। कर देते हैं। हम्म। दूसरा, जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसकी टेंडेंसी को कम कर देते हैं। हम्म। तो ये इंजेक्शन बहुत हेल्पफुल होते हैं। पहले तो डायबिटिक पेशेंट आता था, हम कहते हैं जो आपकी विजन चली गई है, वापस हम्म। नहीं आएगी। बट हम्म। अब हम पेशेंट को इन इंजेक्शंस की वजह से ये हम्म। एश्योर कर सकते हैं कि आपकी विजन इंप्रूव भी करेगी, ओके। हाँ। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप राइट। सोचिए ना, लाइफ में आप विजन लूज करते जा रहे हैं और हम्म। डॉक्टर ये कह रहे हैं नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा हम्म। नहीं है, वी कैन इंप्रूव योर विजन आल्सो। हम्म। बट हम्म। पेशेंट से एक रिक्वायरमेंट है हमारी, डायबिटीज कंट्रोल में रखो। हम्म। वो नहीं रखोगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, बिकॉज इट्स अ टीम वेयर पेशेंट आल्सो हैज टू पार्टिसिपेट एंड डॉक्टर हैज टू इंटरवेन। नो ठीक है, एब्सोल्युटली। ये तो एक ना मेडिकल मैनेजमेंट हो गई। इसके हम्म। बाद था सर्जिकल मैनेजमेंट। मान लो आपकी आंख में जो रेटिना है शुगर की वजह से डिटैच हो गया है, आंख का हम्म। पर्दा हिल गया है, रेटिनल डिटैचमेंट हम्म। हो गई है, या हम्म। आपकी आंख के अंदर पूरी आंख ब्लड से भर गई है, जिसको विट्रियस हैमरेज बोलते हैं, तो हम्म। हमें इसकी सर्जरी करके रेटिना को अटैच करना पड़ता है, ब्लड को हम्म। सक करके निकालना पड़ता है, जिसको हम्म। हम बोलते हैं माइक्रो इंसिजन विट्रियस सर्जरी, हम्म। माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी, कि विट्रियस को निकाल दिया आपने। ठीक है। हम्म। तो हम्म। और रेटिना को अटैच कर देते हैं लेजर करके, ताकि हम्म। जो रेटिना अटैच हो जाएगा तो विजन उसकी रिस्टोर हो जाएगी। और ये हम्म। सर्जरी भी बहुत ही मतलब प्रिडिक्टेबल हो गई है। इसमें हम्म। हम स्टिचलेस सर्जरी करते हैं, बिना स्टिच लगाए। अच्छा। इंस्ट्रूमेंट होते हैं बिल्कुल निडल जैसे 25 गेज के, उसके हम्म। अंदर जाते हैं, ब्लड को सक करके निकालते हैं लेजर करके, आई को हम्म। सेटल करते हैं। तो विजन पेशेंट की जो काफी हद तक रिस्टोर हो जाती है। तो हम्म। काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुई है हमारे इस फील्ड में, ऑफ्थेल्मोलॉजी में, आई में, हम्म। रेटिना में, जिससे हम हम्म। पेशेंट की, डायबिटिक पेशेंट की विजन को काफी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नो। अब ये थोड़ा होपफुल साउंड कर रहा है, बिकॉज थोड़ी देर पहले तक इवन मतलब आई वाज लूजिंग होप कि ट्रीटमेंट में एक्चुअल में विजन वापस आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। राइट। कई बार वो नॉर्मल चीज है कि जो नॉलेज नहीं है तो ऐसा लगता है कि प्रोबेबली पता नहीं क्या हो सकता है, क्या क्या आगे हो सकता है। एंड आई थिंक पेशेंट जो डील कर रहा है उनके साथ तो और ज्यादा होता होगा, बट बहुत अगेन आप। ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें हम्म। पेशेंट के साथ ना पूरी एम्पैथी होती है कि वो किसी हम्म। प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आए हैं, तो उनके हम्म। लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो करके चलें। हम्म। और उसमें पेशेंट का कॉपरेशन और हमारी तरफ से हमारी जो कॉम्पिटेंस है, हम हम्म। वो अगर दोनों चीजें साथ साथ चले तो हम मोस्टली पेशेंट की विजन को बचा के चल सकते हैं, उसको एक एक कलरफुल विजन दे सकते हैं उसको अपना। हम्म। तो और होप सस्टेन्स लाइफ, होप के सहारे ही आप आगे चलते हैं। ये हम्म। बहुत जरूरी है, ये आत्मविश्वास, एक कमिटमेंट अपने के साथ, ये बहुत जरूरी है। हम्म। ऐसा कुछ भी है कि डेमोग्राफिकली भी कुछ इम्पैक्ट होता है? आई मीन रेटिनोपैथी मेन में ज्यादा है, विमेन में ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा है, कोई एज ग्रुप में ज्यादा है, ऐसा कुछ भी डेटा के हिसाब से? देखिए, मोस्टली तो यंग ऑनसेट डायबिटिक तो कम ही होते हैं, 40 इयर्स के बाद इंसिडेंस बढ़ जाता है डायबिटिक्स का। मेल फीमेल ऑलमोस्ट इक्वली अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स में कई बार थोड़ा ज्यादा भी देखा गया है, बट ऑलमोस्ट इक्वली है, कुछ डेमोग्राफिक में दिखाया गया है। तो हम्म। जरूरी ये है कि आप 40 इयर्स के हो गए हैं तो अपना कंप्लीट
हेल्थ चेकअप करवाइए। हाँ, करवाते रहे। अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं, कुछ नहीं है, तो चेकअप करवाइए। बहुत सारी डिजीजेस हैं, टाइम पे पिकअप हो जाएंगी, आप सचेत हो जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, अर्ली कैटरेक्ट, ग्लाकोमा, आप सब इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। जो एज के हिसाब से आएगा आएगा, बट डायबिटीज की वजह से जल्दी नहीं आएगा वो। राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि वी गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि हम लोग तो लाइफस्टाइल भी अच्छा है, फिटनेस का भी ध्यान रख रहे हैं, खाना पीना सब अच्छा है, तो देन वी वोंट गेट एनीथिंग। बट जैसे आपने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि कुछ हिडन सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। पता एंड ही नहीं चलते हैं। राइट, इवन एब्सोल्युटली। इवन ना देखिए, अगर हम बॉडी फिटनेस भी मेंटेन कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बट हम्म। हमारी बॉडी इम्यून नहीं है कि हमें कुछ हो नहीं सकता। राइट, राइट, किसी को कुछ भी हो सकता है, तो चेकअप जरूरी है, रेगुलर चेकअप, बस इतनी सी बात है। राइट, राइट। सो अगर आपसे कंसल्ट करना हो तो कहाँ आना चाहिए? और देखिए, पेशेंट। मेरा नाम तो डॉक्टर नीरज संदूजा है ही, हाँ और जी। मैं कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। हम्म। और मेरा अपना सेंटर है गुड़गांव में, हम्म। वियान आई एंड रेटिना सेंटर, सेक्टर हम्म। 57 में। एंड हम्म। वी हैव ऑल द लेटेस्ट फैसिलिटीज फॉर कैटरेक्ट, glaucoma, retina, squint, oculoplasty, all the treatment facilities are available here. And हम्म। we have one of the best teams of eye doctors over here, हम्म। and who specialize in various fields of ophthalmology. एंड अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे आपने अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स बताए हैं, इंक्लूडिंग सर्जिकल ट्रीटमेंट्स एज वेल, राइट? सो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि इज इट लाइक टू मच ऑफ अ कॉस्टली अफेयर फॉर अ पेशेंट हु कांट अफोर्ड इट, और ऐसा? देखिए, ऐसा होता है, वैसे तो प्राइवेट सेटअप है, ठीक है, बट हम्म। जो पेशेंट नीडी होता है और जिसकी अफोर्डेबिलिटी कम होती है, तो हम पेशेंट को बिल्कुल उसको अकोमोडेट करते हैं, ताकि हम्म। पेशेंट को हमारा भी, एज हमारा जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम्म। हम भी पूरा कर सकें, और हम्म। हर पेशेंट को मतलब अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दिया जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। 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 और हमारे पास कई फिलेंथ्रोपिस्ट भी जुड़े हुए हैं, रोटरी क्लब वगैरह, और भी हम्म। लायंस क्लब, तो वो भी हमें हेल्प करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं करते। तो हम, ये रहता है कि उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रीटमेंट कर दिया जाए, ताकि हम्म। पेशेंट को भी सर्विसेज मिल जाए, और हम्म। प्राइवेट सेटअप के हिसाब से हम भी एक सस्टेन कर सकें अपने आप को। अमेजिंग। राइट। सो अब हम जैसे होप की बात कर रहे थे, तो डू यू हैव एनी स्टोरीज ऑफ होप टू शेयर? लाइक कोई ट्रीटमेंट आपने किसी पेशेंट का किया हो एंड प्रोबेबली हु मस्ट हैव लॉस्ट होप, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक पेशेंट की बात की थी, राइट? ये अगर रेटिनोपैथी की बात करें या आई डिजीज एंड डायबिटीज की बात करें, तो आर देयर एनी पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो आप शेयर करना चाहें व्हिच मे गिव होप टू पीपल हु आर हाँ लिसनिंग? जी, हाँ जी। देखिए, ऐसा है, मेरे पास ना बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं रेटिना प्रॉब्लम के साथ, और राइट। डायबिटीज एक एपिडेमिक बन चुका है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बहुत ज्यादा आते हैं पेशेंट्स। अभी हम्म। कुछ दिन पहले ही हमारे पास पेशेंट आया था दिल्ली से, जो हम्म। डायबिटीज के लिए एक बहुत अच्छे डायबिटीज स्पेशलिस्ट को दिखा रहे थे, और हम्म। उनको एक आंख में वो अपना कैटरेक्ट सर्जरी लगभग 10 साल पहले करवा चुके थे। विजन अच्छा चल रहा था। लेफ्ट हम्म। आई से वो कह रहे थे कि पिछले 8-10 साल से मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला आंख के अंदर ब्लीडिंग है, कैटरेक्ट है, कुछ हो नहीं सकता है, तो डॉक्टर हम्म। साहब प्लीज देखिए, इसको कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम्म। हम्म। तो उस पेशेंट को भी मैंने हम्म। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाया पहले, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी थी उसको, हम्म। लगाकर फिर मैंने कैटरेक्ट और रेटिना सर्जरी की। और हम्म। पेशेंट जो था, अगले दिन ही उसको ऑलमोस्ट 10-20% की विजन आ गई। वो कहता, डॉक्टर साहब मैंने पिछले 8-10 साल में नहीं देखा था जो, हम्म। और सबने मना किया था, आपने मुझे हिम्मत दी, हौसला हम्म। दिया कि हम कुछ कर पाएंगे, और मैंने भी आपको सरेंडर करके अपनी हम्म। सर्जरी करवाई। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड हैव हैड सम विजन इन माय अदर आई आल्सो। मैं एक ही आंख से देख रहा था, अब मैं दूसरी आंख से भी देख पाऊंगा। तो मेरे हम्म। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी बीमारी अगर है और हम्म। वो डुएबल है, तो हमें पेशेंट की हेल्प जरूर करनी चाहिए। अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे भी नहीं हो सकते, तो भी हमें स्टेपनी की तरह आंख को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी आंख को। उसको हम्म। पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट, टाइम पे ट्रीटमेंट देने से क्या होता है, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। और हम्म। किसी बीमारी को बहुत लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया जाए और बाद में सोचा जाए करेंगे, तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। हम्म। हम्म। तो हर एक डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरा एक मैसेज है कि हम्म। आप अपना टाइमली चेकअप करवाइए डायबिटीज रिलेटेड, और फंडस चेकअप भी करवाइए, ताकि हम्म। कोई बीमारी टाइम पे पता चलेगी, तो उसको टाइम पे ट्रीट कर पाएंगे, और आप भी सचेत रह पाएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है और हमें अपना ध्यान भी रखना है।
तो सारी चीजें करते हुए एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके आप अपने विजन को बचा सकते हैं। मतलब कि कोई डरने की बात आज सच है नहीं। नहीं, डरने की बात ट्रीटमेंट्स नहीं है। अवेलेबल है, होप है, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर्स हैं, देन बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब तो अच्छे अच्छे रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, इतने ट्रेंड हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी विजन को बचा सकते हैं अगर दिक्कत आ भी गई है तो। Absolutely. So I think we have spoken about signs and symptoms of retinopathy, और कई बार जो साइंस जो दिखते नहीं है उसके लिए ट्रीटमेंट एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है, एंड देन ट्रीटमेंट में भी काफी एडवांसमेंट्स हो गए हैं, बट ओवरऑल आई थिंक सम अप इस चीज पे हो सकता है कि लाइफस्टाइल एक तो चेंजेस आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड डायबिटीज को कंट्रोल करना पहले बहुत जरूरी है, राइट? अभी आपने जैसे मेंशन भी किया कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी आप एडवाइस करते हो कि फर्स्ट कंट्रोल देयर डायबिटीज एंड रेगुलर चेकअप कराओ, बट ओवरऑल अगर एक सम अप हमें करना हो तो क्या आपका फाइनल एडवाइस होगा जो लोग सुन रहे हैं, पहले उनके लिए जो डील कर रहे हैं इस कंडीशन के साथ, एंड देन उनके लिए जिनको प्रॉब्ली डायबिटीज है बट दे डोंट नो अबाउट दैट कि इस टाइप की कंडीशन भी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना जो डायबिटीज कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। HbA1c है जो 3 मंथ्स का कंट्रोल बताता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, उसको लेवल को अपना 7 से नीचे रखिए आप। और ब्लड प्रेशर को हफ्ते में एक बार मॉनिटर करते रहिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट तो आ नहीं रहे, कोई चक्कर तो आ नहीं रहे, हेडेक तो हो नहीं रहा, मुझे तो ब्लड प्रेशर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी कैसे बिहेव करती है पता नहीं होता है। तो आपको राइट। ब्लड प्रेशर भी अपना, अगर डायबिटिक है, और ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस काफी हाई है डायबिटिक पेशेंट में, आप लगा लो हर दूसरे तीसरे डायबिटिक को ब्लड प्रेशर है ही है। तो जरूरी है कि शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, और अपने फिजिशियन को 3-4 महीने में मिलते रहिए। और आंखों की तरफ से मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपकी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है तो साल में एक बार चेकअप करवाइए। और अगर बीमारी आ गई है तो डॉक्टर बताएगा क्या इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट करके हमें आंखों को बचाना है। तो वही है, हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइमली चेकअप और टाइमली ट्रीटमेंट, यू विल हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एब्सोल्युटली, आई थिंक यही चाहिए बस एक कि हम लोगों को ये सब पता होता है बट कई बार हम लोग खुद करना भूल जाते हैं, इग्नोर, आई अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं हम अपने आप को, वो नहीं होना चाहिए। मतलब यू हैव थिंक। टू लव योरसेल्फ, यू हैव टू लव योर बॉडी, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी। राइट, राइट। एक एक क्वेश्चन, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, लाइक मैं काफी कुछ दिन से ना आई एम रीडिंग अबाउट दिस कनेक्शन बिटवीन आवर माइंड एंड आवर बॉडी। तो मैंने कई लाइक देयर इज दिस थिंग कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट कि हम जैसा हमारा माइंड वर्क करेगा वैसे ही हमारी हेल्थ वैसे ही वर्क करती है, बॉडी बॉडी हेल्थ। सो डू यू आल्सो बिलीव इन दैट कि अगर हम माइंड से अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं कि हम रिकवर कर जाएंगे तो प्रॉब्ली हम हेल्दी हो भी नहीं पाएंगे? डू यू आल्सो बिलीव इन दैट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी बहुत जरूरी है। अगर हम्म आपका हेल्दी माइंड है, बॉडी तभी हेल्दी रहेगी। क्योंकि हम्म अगर माइंड हेल्दी नहीं है ना, तो आप कोई भी लाइफ में स्टेप्स है ना अपनी बॉडी के लिए, वो नहीं ले पाएंगे। हम्म अब हम्म माइंड डिप्रेस्ड है, आप बाहर नहीं निकलेंगे, किसी से हम्म बात नहीं करेंगे, अपनी हम्म हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, आप वॉक के लिए नहीं जाएंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो सारी चीजें तो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। हम्म तो बहुत जरूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, हम्म हम्म आप अपना योगा करिए, मेडिटेशन करिए, हम्म वॉक के लिए जाइए, जिम जाइए। हम्म फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल। एज अ राइट। डॉक्टर ऑल्सो, वी हम्म आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। अदरवाइज हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे अगर खुद ही राइट हेल्दी नहीं रहेंगे। राइट राइट एब्सोल्युटली। डिप्रेस माइंड से तो हम भी नहीं पेशेंट को देख सकते, एंड हम्म पेशेंट नीड्स दैट काइंड ऑफ एम्पैथी फ्रॉम अस, कि एब्सोल्युटली हम डॉक्टर के पास एब्सोल्युटली। आए हैं, डॉक्टर खुद ही फेस बना के बैठे तो हमें क्या आई ट्रीट नो, करेगा। राइट राइट। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है बात करके, यू हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस, राइट? बट अब कुछ डॉक्टर्स होते हैं अब जिनके पास जाने का खुद ही ऐसे डर लगता है कि अभी डांट पड़ेगी और यू हाँ, नो। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, ईगो किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम्म इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। और मेरा पेशेंट मेरे से कुछ एक एक्सपेक्टेशन के साथ आया है, तो आई हैव टू फुलफिल दैट एक्सपेक्टेशन इन ए वेरी लॉजिकल, कॉम्पिटेंट एंड फ्रेंडली मैनर। एब्सोल्युटली।
Thank you so much, Dr. Neeraj, for this insightful conversation. And I think insights के साथ साथ हमें बहुत hope भी मिली है इस conversation से. And I mean, absolutely adore what you're doing. And I think कि जो भी patients, अगर कोई patient है जो इस conversation को सुन रहा है, तो definitely it would help them. और अगर उनके कोई भी सवाल होंगे तो मैं आपके credentials डाल दूंगी, आपका reach out कैसे करें डाल दूंगी, so that they can directly get in touch with you as well and get their problem solved. And thank you so much, madam, for Mhm. giving me this opportunity Hmm. for being with you. And it is really nice. You are also helping patients in a wonderful way, connecting them to us, and whatever service you're doing to the society, it is great. Thank you so much. Thank you.